اکبر آپ فرماتے ہیں حسین اتنے دن تمہاری والدہ کو وصال کیے ہوئے گزرے، آج تک میں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ آج کچھ مانگ سکتا ہوں؟ آقا حسین کہتے ہیں جی بابا جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آپ نے فرمایا بیٹے ذرا قمیص تو اٹھا۔ آقا حسین نے قمیص اٹھائی، سارا مجمع غیرت میں تھا۔ حسین نے جیسی قمیص اٹھائی ہے حضرت علی کی چیخ نکلی ہے، کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی لب چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تالی بات سمجھ میں نہیں آئی، فیصلہ اونٹ کا تھا، آخر اس حسین سے کیا لینا دینا؟ رو کے فرماتے لوگوں تم نے نہیں دیکھا وہ اونٹ تھا، یہ حسین ہے، اس کا ایک کٹا ہے، اس کے بعد در کٹیں گے۔ کہا یہ جانور ہو کر کے اگر اپنوں کا درد کر سکتا ہے تو میرے حسین کو 72 کا درد کتنا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر فرمانے لگے یہ اونٹ ہے، یہ حسین ہے، اس کا ایک کٹا تو دل پہ زخم ہو گئے، میرے حسین کے تو 71 لاش حسین اٹھا کے لائیں گے، میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ فرمایا لوگوں اس دن چومنے کے لیے علی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اللہ، اس لیے آج چوم رہا ہوں۔ ایک دن تھا علی سینہ چوم رہے تھے، پھر ایک دن آیا حسین خیمے میں اپنے بابا مولا علی کی ذوالفقار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ سیدہ زینب کو خیال آیا بھیا خیمے میں اکیلے ہیں، وہ بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی، بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اندر کہیں اچانک جھٹکے سے آنکھ کھلی، سیدہ کہنے لگی بھائی خیر تو ہے؟ فرمانے لگے ہاں زینب سب ٹھیک ہے۔ کہا لگتا ہے ابھی کچھ محسوس کیا؟ فرمانے لگے آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں نانا تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگی نانا تشریف لائے تھے، بھیا کیا ہوا؟ کہنے لگے علی پریشان نہ ہو، کئی دن کی پیاس ہے، کچھ دیر کی بات ہے، بس تجھے آخری سجدہ کرنا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تجھے پلانے کے لیے تیار ہوں۔ سب نے سنی، اللہ اکبر، شہادت حسین کون نہیں جانتا، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے حسین شہید ہوئے۔ بڑی اچھی بات مفتی ناظم صاحب نے ایک بات کہی تھی، حسین کی بھی جان ہے، ان کا بھی اپنا جسم ہے، ہاں ان کا بھی اپنا جسم ہے، ان کی بھی اپنی زندگی ہے، اولاد تو ان کی بھی ہے، ورنہ صاحب اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کوئی 6 ماہ کے بچے لے کے نہیں جاتا، کوئی 7 سال کی بیٹی لے کے نہیں جاتا، لڑنے جاتا ہے تو کوئی بچوں اور بیویوں کو لے کے نہیں جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہاں کے دارالعمارت میں حسین بیٹھیں گے، ہم ان کے دائیں بائیں رکھیں گے، لیکن جب مکہ شریف سے آپ چلے، امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا جسے جانا تھا جائے۔ تو کچھ لوگ جو مکہ کے ساتھ ہوئے تھے ان میں کہ کچھ واپس ہو گئے تھے، لیکن جو میرے حضور کے مدینے سے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا تھا حسین اگر مزے تھے تمہارے ساتھ تھے، اگر جان کا سودا ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا جائے۔ یہ زندگی ہے، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو جوانو اللہ تمہیں سلامت رکھے، مر جانا حسین کا ذکر مت چھوڑنا، نسلوں سے کہہ کے مرنا، اگر حسینی رہو گے تبھی جنتی رہو گے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا۔ کیوں؟ حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر تو مجھ سے پیار کرنا، لیکن فرمایا میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا۔ کیوں؟ حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا، حضور نے میرے علی اور اس کی آل کی محبت وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی بچائے گی، پل صراط میں بھی بچائے گی، حشر میں بھی بچائے گی۔ یہ تعلیم حضور نے دی۔ اور سنو، آج بندہ عشق کرے حسین سے،
जलसे में अगर 100 रुपये बंदा दे देता है तो कहता लो जी मैंने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। जानते हो तारीख में एक नाम आता हबीब इब्ने मुज़ाहिर का। कितनी उम्र थी? 72 साल उम्र थी हबीब इब्ने मुज़ाहिर की। आज उठाओ ना किसी 72 साल के बूढ़े को, शायद घर से ही नहीं आया हो। हाँ, क्योंकि 72 साल में इतना कमजोर बंदा हो जाता है कि उठना मुश्किल। लेकिन हबीब इब्ने मुज़ाहिर, अल्लाह अकबर, जब ऐलान किया हुसैन हल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, तो जानते हो सबसे पहली तैयारी हुसैन की थी, सबसे पहली तैयारी। लेकिन 72 साल का बूढ़ा हबीब आया, और ऐसे नहीं लाठी टेक के आए कि हुजूर इजाजत दे। आपने फरमाया हबीब ओ यार 3 दिन प्यासे हो गई तुझे, फिर मुझसे शहादत की जंग में जाने की इजाजत मांग रहे हो? कहने लगे हुसैन, सफेद दाढ़ी दिखा के कहा, हुसैन ये समझते हो ना मैं गया तो लोग मुझसे तुम्हारे लश्कर की कमजोरी का अंदाजा लगाएंगे? इतना कह के ना लाठी फेंकी, और जो जुमला आपने फरमाया, कहते खुदा की कसम, मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, एक बार अपने हाथ से सवारी पे सवार कीजिए, तलवार दीजिए, यजीदियों से ऐसा मुकाबला करूंगा कि कयामत तक कोई यजीदी हबीब का चेहरा भुला नहीं सकता। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। कहा था भेजें, अब सुने क्या जुमला था कि कयामत तक याद रखेंगे लोग हबीब का चेहरा। हाय हाय, बात कमाल की नहीं थी? और उम्र 72 हो, कमर झुक गई हो, लाठी के सहारे, सामने 22,000, 3 दिन का भूखा प्यासा, एक बार बैठा दीजिए ना, फिर देखिए छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया, पीछे हट के कहने लगे हुजूर जरा कदम हटाइए। जी कदम हटाया। बचपन से मिट्टी उठाते थे, आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के। कहते हैं कदम हटाइए, हटाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई, सर पे डाली। कहने लगे आका अब सवार करो ना। मेरे हुसैन ने सवारी पे सवार किया, तलवार हाथ में थमाई, कहने लगे खुदा हाफिज कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुंचे ना 22,000 ठट्टा मार के हंसे, लो जी ये बचा गए बूढ़ा हुसैन की फौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो अमर इब्ने सअद। कहा क्या? कहा थोड़ी सी इजाज़त देना। कहा कौन सी? कहा इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी कि हुर को ले लिया था इन्होंने। अब एक बार इजाज़त दे, हम पानी का लालच दे के इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। ये अमर इब्ने साद ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाज़त तो दे ना एक बार, क्या जाता? कहा ठीक है। इजाज़त की बारी आई तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मज़ा तो चखा दे बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे। जानते हो 12 यजीदी फना फिन्नार किए थे 72 साल के बूढ़े ने। कितने? 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था, आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया। देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया, पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से सीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। कहा हबीब पिएगा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जान दे सकते हैं हुसैन का साथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
साल। ये 72 साल के बूढ़े की कहानी है साहिब। अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओगे? कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम। लेकिन हमारी कौम को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ। नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए। सुभान अल्लाह। 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया था। और जालिमो, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी है। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया। सुभान अल्लाह। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की, कराई तो हुजूर फरमा रहे थे हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो। दाओ मुस्तफा इमाम हसन को बता रहे थे। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जी हसन तो वैसे भी बड़े हैं, आप हुसैन को बताते ना, आप हसन ही को बता रहे। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहने लगे मेरी फातिमा, मैं दाओ हसन को सिखा रहा था और हुसैन को दाओ जिब्रील अमीन सिखा रहे थे। हमने इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू आज इतने फैसले करने वाला, इसलिए उनको नहीं मानने तैयार कि उन्होंने अमीर माफिया से फैसला समझौता किया। तू इमाम हुसैन से बड़ा हो गया। अरे खुदा की कसम, अगर इमाम हसन को समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा है तो बरेली वाली सुन्नी भी नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन, जो आज हसन से दूरी करेगा वो कयामत में हुसैन से भी दूर रहेगा। जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, अगर तुझे लगता है तेरा मौलवी बांट जाएगा तो तू और तेरा मौलवी तय बना के उस तबके में डाले जाएंगे जहां गर्मी को भी गर्मी लगती है। होश में रहे। आला हज़रत कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान गर्म की ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने बेटे इमाम हसन के, कितने बेटे सुने? यही हजरत कासिम जिनकी परवरिश की आका हुसैन ने, ठीक है, जिनकी देखभाल की सैयदा ज़ैनब ने, जिनको तलवार सिखाई गाजी अब्बास ने। सुभान अल्लाह। ये है हजरत कासिम। और जहां तक बात आ गई पावर और ताकत की तो सुने, पूछे इन उलमा से, अरज़क के कितने बेटे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने बेटे थे अरज़क के? 4 काटे। गाजी अब्बास टीले से देख रहे थे। अगर शागिर्द की इज्जत होती है तो उस्ताद का फख्र से सर खुद सर ऊंचा होता है। मेरा शागिर्द है, हाँ मेरा शागिर्द है। तो जब हजरत कासिम आए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े थे। जब तलवार चली, पहला कटा, कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। तीसरा काटा, फिर बोले शाबाश। जब चौथा सर काटा, कहने लगे हुसैन जरा कासिम का कमाल तो देखो। 4 काट दिए गए, मेरे हुसैन दौड़ के आए, टीले पे खड़े हुए, सामने अरज़क था, तलवार उठी, सर कटा। गाजी ने कहा अब्बास, गाजी कहते शाबाश, लेकिन हुसैन करते कासिम बस कर, बस तलवार मत उठाना। हम यहाँ ताकत दिखाने नहीं बल्कि हम यहाँ पे दीन भी बचाने आए हैं, उम्मत भी बचाने आए। वरना 22,000 की की कसम, अगर 22 करोड़ भी होते तो मेरे हसन का तनहा कासिम काफी था। तनहा कासिम। ये कुर्बानियां करबला की, अल्लाहु अकबर। और अजीब मंजर, आखिरकार मेरे हुसैन भी करबला के मैदान गए।
जिस घोड़े पे मेरे हुसैन सवार होते थे, उस घोड़े का नाम क्या था? स्टेज वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले जरा। मालूम है? उस घोड़े का नाम तारीख में मिलता है मुर्तजिज। क्या? याद कर लो भाई, मुर्तजिज। ये घोड़ा यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफ़ा को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर अली ने जब अपनी जायदाद और अपनी दौलत में से बेटों को कुछ कुछ दिया तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। ठीक है, मुर्तजिज किसके हिस्से में आया? आका हुसैन के। इसकी अपनी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। ये इसकी अपनी खासियत थी। अब मुझे बताओ भाई, हुजूर जिस ऊँटनी पे सवार हुए तो वो हवा से बातें करने लगी। वो कहा हलीमा सवारी बदल दी, कहने लगे नहीं, सवार बदला है, सवार बदला है। जानवरों को पता है कौन मेरे ऊपर बैठा है। हजरत हलीमा बात याद आ गई तो वो बात भी कर डालूं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया जैसा नसीब तो अब किसी में देगा बताओ, जिसने मुस्तफ़ा को सीने से लगा के दूध पिलाया हो, ऐसे नसीब वाली खातून कहाँ मिलेगी? जब आई थी ना आप हुजूर को लेके चली तो सवारी हरम के आगे थी, तो आगे शोहर बैठ गए आपके, वो पीछे हजरत हलीमा। अब ऊँटनी को मार रहे, वो उठ ही नहीं रही। तो जब आपके शोहर ने मारा ना, हुजूर के सामने से दादा आ रहे थे, वो पोते को छोड़ने आए थे। कहने लगे क्यों मार रहे हो इसे? कहने लगे जनाब ये परेशान कर रही है। फरमाते मार मत, अभी उठ जाएगी। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं उठती है। क्यों? हजरत जी ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूँ, ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूँ। जब इतनी बात कही ना तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे तेरी उठनी है, तू जानता है, लेकिन ये जो गोद में है ना मेरा पोता है, इसे मैं जानता हूँ, ये मेरा पोता है। कहा ये नहीं चलेगी। कहा फिर कैसे चलेगी? आपने फरमाया आप पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ, उनकी गोद में है मेरा पोता, जब वो आगे होगा तभी ये चलेगी। हजरत हलीमा आगे बैठी, फिर उठ के खड़ी हुई और हवा की तरह बातें की और तेज चली। उसे मुकद्दर पे नाज था कि मेरे ऊपर वो बैठ के जा रहा है जो नबियों का इमाम है, लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये कहता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन। जो है अभी थके तो नहीं? नहीं थके तो बोले या हुसैन। तो मेरा गला बंद होने वाला है मगर आप कतई बोलने तैयार नहीं। अल्लाह सलामत रखे, जरा आप बोले ना, शायद आपकी बरकत से गला खुले। बोले जरा जोर से या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह अब लग रहा है जैसे आपकी महफिल अभी शुरू ही शुरू है। हाँ बस तवज्जो करें, मुर्तजिज पे बैठे आप, सवाल की बातें बहुत सारी है, लेकिन आज इसने भी खिलाफ क़यास काम किया। जिसे पहला इशारा करते थे तो उड़ जाता था, आज 11 मरतबा लगाम खींची है, 11 मरतबा लगाम खींची, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं बढ़ा, आपने फरमाया मुर्तजिज मुझे मालूम है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है मुर्तजिज, मगर मैं करीम इब्ने करीम हूं, हम किसी पे जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं। मुर्तजिज मैंने इतना कहा, खेमे के दरवाजे पे मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, तुझे जल्दी करना था लेकिन आज तू चल नहीं रहा। क्या तलवारों से डरा, तीरों से घबरा गया, या प्यास बढ़ने नहीं देती? ये कह के जैसी आपने सीन से पैर खींचा, मुर्तजिज समझ गया हुसैन नाराज है। अल्लाह अकबर, जैसी पैर निकाला मुर्तजिज कहने लगा अल्लाह आज कुव्वत गोयाई दे दे, अगर आज नहीं बोला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। कुछ लोग कहते वो घोड़ा था कैसे बोल गया, मैंने कहा पढ़ कुरान, असहाबे कहफ को देख,
رات میں چلے کتا بھونکا، انہوں نے کہا چلا ہٹ۔ اس نے کہا مالک بولنے کی اجازت دے، مجھے ان اللہ والوں سے کچھ باتیں کرنی۔ پوچھو علماء سے، کتے کو بولنے کی طاقت ملی؟ اس نے کہا مجھے ساتھ لے لو۔ انہوں نے کہا ہم کتوں کو ساتھ نہیں لیتے کیونکہ کتے بھونکا کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں وہ کتا نہیں جو ولیوں پہ بھونکتے ہیں۔